ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے محبوب فلم ڈائریکٹر جناب ہیرا سپر ہٹ صاحب اپنی نئی فلم کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں صدقے جاواں میرے لیے یہی بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ آپ کے منہ سے یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے محبوب فلم ڈائریکٹر. بات یہ ہے اپنا جنید سلیم صاحب، فلمیں تو دنیا پہ بنتی رہتی ہیں. کون سا ملک ہے جو فلم نہیں بناتا؟ سعودی عرب. دیکھو جنید صاحب، یہ آپ نے تمسخر اڑایا ہے میرا. نہیں میں ثابت کرتا ہوں سعودی عرب بھی فلم بناتا ہے. وہاں بے شک فلم شادی کی بنے یا اونٹ کے ڈانس کی بنے، بنتی تو ہے. میں نے خود دیکھی ہے. ہے ہی کوئی نہیں، جمعے ہی نہیں ہو جائے ڈائریکٹر کوئی. تیری خیر کرے، چیتے تو چیتا ہے. بات یہ ہے کہ فلم اثر کیا چھوڑتی ہے. دیکھنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے پیارے ویورز جو ہیں، جو ناظرین ہیں، ان پہ فلم کا اثر کیا ہوتا ہے. اب فلم یہ سوچ کے اگر بنائی جائے کہ پبلک کے اوپر کیا اثر چھوڑتی ہے تو فلم تو وہی ہوتی ہے. ویسے تو فلم میرا مطلب ہے شادی کی بھی بن رہی ہے. ہیرا صاحب ایسے انیاں فلماں نہیں بنائیاں جنیاں تسی موجاں لے رہے ہو نا. چیتے پتر، بات یہ ہے کہ یہی تو ہیرے سپر ہٹ کی ایک وجہ ہے. کیا کہنے کہ ہیرا ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. ہیرے نے ساری زندگی محنت کی ہے اللہ کے فضل سے. چھال مار کے سیٹ تے ٹر گئے ہیں، چھال مار کے اتھوں منجی تے جا پئے ہیں، اتھوں ہی سویرے اٹھ کے پھر ایکشن کہہ دیتے ہیں. اسی لیے ہیرا سپر ہٹ جو فلم بناتا ہے اس کو دیکھنے والے بھی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. فلم ہی ایسی بنتی. ہیرا جی ٹیک کے بھائیو کدی ادھر بج دے ہو کدی ادھر بج دے ہو، لگتا بڑے ٹرک چ کلی مجھ لے کے جا رہے ہیں. ہیرا صاحب میرے والا کام تسی کرنے لگے ہو، کی کر رہے ہو؟ اوفو، کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہیرا جی کا کیا بات ہے. ہیرا جی آپ کی کیا بات ہے. تیرے صدقے جاواں ایویں نہیں تیرے انہیں نہ ہوئے. دیکھو ذرا اپنے جنید صاحب، فلم اکڑی لگی اس بچی دی تو بھاگ لگ گئے. کی نا سی تو کی ہو گیا ہوں. ہاں جی پہلے سمرا اقبال سا جی. اچھا. ہاں جی 5-6 مہینے دی محنت دے بعد پھر اقبال مگروں لایا. سمرا چو اقبال کٹیا تے باقی رہ گئی سمرا. پھر پتہ لگا کہ سمرا افضل ہو گئی ہے، پھر افضل ناڑو لانا پہ گیا. افضل تے ہیرا جی انج جان والا ہے ہی نہیں سی. 3 بار انہیں مینوں کٹیا تے پھر گیا. تیرے صدقے جاواں ظاہر ہے ہیروئن تے بچانی سی نا سا. جدو پھر رہ گئی سمرا تے پھر انس کیتا جے سائمے تو پھر ماڈرن کر کے کیتا سوزی. پھر چڑیا گھر والے سوزی لے لئی، اسی پھر بدلنا پہ گیا. پھر اسی انہوں کر لیا سویٹی. جنید صاحب بڑی برکت جی اس بچی دے ایکسپریشن اچھ. ہائے ہائے ہائے، دیکھو فلم ساز کنا تگڑا ہے. جدو مرضی انہوں برگر لینڈ پہ ہی دے دیجئے. اور جی میں آپ تا چلے جانا ذرا ٹکی اور ڈبل کر دندا ہے. اب برگر والا کہہ دیندے نا جناب تسی آپ ڈبل ہو تو ٹکی ڈبل رکھاؤ. اچھا فلم کون سی بنا رہے ہیں؟ وہی ہارر؟ نہیں جی بدلنی پہ گئی جی شتوری. کیوں؟ انصاری نے رٹا پا لیا، وہ کہیں بھائی سرمایہ میرا لگ رہا ہے تو ٹائٹل بھی میں ہی کراں گا. ہاں جی ہن ایلین بنا رہے ہیں جی. اچھا ایلین مووی ہے. ہاں جی، اور پھر انصاری نو پا کے ہیر رانجھا تے بندی نہیں. جی کیوں نہیں بنتی ہیر رانجھا؟ بھائی جی ہیر رانجھا ہے جی، ہیر ہیروئن ہے، ہیر دی مجھ نہیں ہیروئن. ہیرا جی یہ ہیرو ہے؟ کیوں میری اقبا محترمہ پیمنٹ میں کرنی ہے ساری کاسٹ نو. وہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ ہیرو ہے. انصاری صاحب ہیرا جی ساری کاسٹ دے پاسپورٹ لے لو،
फिल्म तुर्की बनेगी। ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਦੁੰਬੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ। एडी भी गल नहीं, तुसी दियो जी पासपोर्ट। अंसारी साहब पासपोर्ट छोड़े, मेरा तो भी आईडी कार्ड नहीं बना, मेरी तो भी उम्र ही 17 साल है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ 19 ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੇ ਉਮਰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ 17 ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਗ ਜੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਵਰਨਾ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਚੀਤੇ ਲਈ। ये केड़ा चीता जेड़ा चाह पींदा जी? हाय अंसारी साहब आन दो चाह, जे चीता नहीं पिएगा तो मैं पी लांगा। अच्छा हीरा जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एलियन मूवी बना रहे हैं और कास्ट आप इसको कर रहे हैं, फिल्म साज को टाइटल इससे करवा रहे हैं, ये तो कोई गैर इंसानी मखलूक नहीं लग रही। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। तो फिर एलियन की बजाय आप ज्यादा से ज्यादा बेलियन बनाए ना, बैल से। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। अच्छा ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਹੀਰਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। लेकिन चेहरा तो इंसानी है ना। ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਆਡੀਅנס ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। हीरा जी मेरा चेहरा तो नहीं ना बदलेंगे? क्यों जी, मेरे पैसे लगने मेरा बदल रहे, ਤੁਹਾਡਾ क्यों नहीं बदलेंगे? ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। जाहिर है इनका चेहरा तो उस वक्त भी बदल जाएगा ना जब फिल्म देखने वालों ने कहा कि उसको निकालो जिसने टाइटल किया है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਜੀ नहीं तो आपको फिल्म देखने वाले छोड़ देंगे। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੇਗੀ। ਸਦਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। अच्छा ਏਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। अच्छा, तो जब आपके लिए नजर ही नहीं आ रही होगी तो आप लड़ेंगे कैसे? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਓਏ ਰਾਜੀ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਇਧਰੋਂ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ? ये क्या हो रहा है? ਇਹ ਤੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਹੀਰੋ ਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। धड़कन दिल देता तुम्हारे दो नैना दी मार होवे तक बिना दिल में होवे तक बिना दिल। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾ ਬੱਚਿਆ। ये क्या फजूल हरकतें कर रहे हैं हीरा जी आप? ਬਸ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। हीरा जी मेरे पैसे पागलों ते लवा रहे हो, किसे प्लाजे ते लवा दियो। कमाल है अंसारी जी, मैं हूं ना फिल्म में, आप भी परेशान हो रहे हैं। गोली मारो जी प्लाजे नू, लाओ फिल्म ते लाओ। उठ जा बेटा, उठ जा मेरा पुत्रा, अल्लाह तेरी खैर। बस मेरा बच्चा, ये बच्चा सारी रात तड़फता रहता है। अच्छा हीरा जी, ये तो बताएं कि टारगेट क्या है, ये फिल्म कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जुनैद साहब टारगेट कोई नहीं चाहिए है? क्योंकि ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ नहीं ਹੈਗਾ, अच्छा ना ये को मेट्रो बनन रही है, फिल्म बनन रही है। फिर भी आकर नहीं जुनैद साहब, टाइम इसमें बताया नहीं जा सकता क्योंकि इसके गेटअप पे बड़ा वक्त लगा। अच्छा एलियन बनाना अंसारी को ये कोई मामूली काम नहीं है, अच्छा क्योंकि एलियन ये बड़ा अजीब सा है। अच्छा इसके गर्दन के ऊपर पूंछ लगी हुई है और अब इसके मुंह को पूंछ में बदलना मेकअप आर्टिस्ट 2-2.5 महीने तो लगाया करेगा। हर शूटिंग से पहले 2-2.5 महीनों में इसको गेटअप किया करेगा। इन्हों से 2.5 महीने सॉन्ग नहीं देना क्योंकि अद्धे गेटअप च सॉन्ग गया तो गेटअप खराब हो जाए। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਚੀਤੇ ਲਈ। ਮਸ਼ਰੂਬ ਬਦਲ ਲੋ ਹੀਰਾ ਜੀ, ਚਾਹਾਂ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੀਤਾ ਬਨਮਾਨਸ ਕਰ ਲਿਆ। एक मिनट खलो जाए, टार्जन दी बांदरी, एक मिनट ठहर जा। गल पुत्र तू समझिया नहीं, चीता चाह नहीं पिएगा तो टेंशन वाला काम किवें करेगा? लो जुनैद साहब, वक्त इसलिए दरकार है इस फिल्म पे कि
हमने जब अंसारी के मुंह की पूछल बढ़ाई तो इसके कानों पे कवर चढ़ जाएगा। जब कानों पे कवर चढ़ जाएगा इसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। रोज राती सानू ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ 28000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ। यानी हर पेमेंट पे नया मेकअप ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਨਾਬ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 3-4 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪੂਛਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। 2-3 घंटे शूटिंग होनी है फिर पैकअप करनी पैनी। हीरा जी या प्रोड्यूसर बदल लो या अंसारी साहब का कैरेक्टर बदल लो। पुत्र इहो जिहा ना मैनू फाइनेंसर लभना है ते ना इहो जिहा बनया बनाया एलियन लभना है। अभी आप कह रहे थे कि गेटअप में आधा दिन लग जाना है। वो हजूर हो ते सिर्फ पूंछ बनाने ते लगने इदू थल्ले ते बनया बनाया एलियन जी। मैं जुनैद साहब एक बारी पिंड मिलन गया अंसारी साहब नूं फांटा वाली निक्कर पा के अपने ट्यूबवेल च तैरन डए। यकीन मनो मैं उत्थे ही कंसीव कीता कि यार ये एलियन हो सकते। क्या बात। हीरा जी इधर उधर की बातें करते जा रहे हैं। अभी तक आपने अपनी फिल्म की स्टोरी के बारे में, थीम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जुनैद साहब थीम सुनोगे, फिल्म दी स्टोरी सुनोगे तो तुसी कन्ना ते हाथ रख लोगे। चले रख लिए, सुनाए। दोवें रखो जिते कुआल लगन दे। लो बाबू स्टोरी शुरू हुई जे मुरीख ते। मुरीख दी मखलूक पहाई है अंसारी एलियन। अच्छा अच्छा ठीक। असी स्टोरी शुरू इथों करने आ कि एलियन अंगड़ाई लई है ते सौ गया मुरीख पे। जी हाँ मुरीख ते सुता है। ठीक है। हुण इन्हें सुत्तियां पिया पासा पलटिया ते ए मुरीख तो थल्ले चांद ते डिग पिया। चांद में सुराख हो गया। नहीं सुराख नहीं होया टोया पै गया। अच्छा ये असी फ्लैशबैक च दहाना है। अच्छा हले नहीं असी दहाना। सुता है ते कट करके सी दहाया उठिया ते ए टोए च फसे है। टोए च फसे है उठ के भज नस करन लग पिया उत्ते वेखन लग पिया आवाज़ां मारन लग पिया कोई है कोई है कोई है। इनू समझ नहीं आ रही सुता किथे सा उठिया किथे है टोया चमकन डे है मुरीख है या चांद है की है। पब्लिक नाल तुर पई कि नहीं जी। हाय हाय जबरदस्त जबरदस्त। ਇਹ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਈ ਚੀਤੇ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਦੇ ਚ ਫਸਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਪਿਆਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਫਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ एलियन मेरा फंस गया टोए च वादा मारन दे है कोई है। चंद ते परे माई चरखा कतन दे। बात है। हाय 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 चरखा काटने उन्होंने आवाज आई है कोई है कोई है कोई है। चरखे वाली माई ने आवाज सुनी है तो उन्हें घबरा के अपने मुंडे ने आवाज मारी। ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਚੀਚੜ ਲਾਣ ਦੇ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਫਰੇਮ ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ? हाँ नहीं ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚੀਚੜ ਲਾਂਡਾ ਮਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਸਿਆ ਮਾਲ। ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਮਾਈ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ 6000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਅੱਬਾ ਤੇ ਐਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖੇ। ਜੋ ਏਲੀਅਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹੀ ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। क्या बात है। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀਨ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਏ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ। ओह अंसारी साहब क्या हो गया आपको रुक भी जाए। टोए में तो हमारा आइटम सॉन्ग है। ਅੱਛਾ ਹੀਰਿਆ ਫਿਲਮ ਮੁੱਕਣੀ ਵੀ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੱਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਜੇ ਟੋਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਚਰਖੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਏ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਸਦੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। टोया टोया चरखा चले टोया टोया चरखा चले आजू बाजू बाणियां तेरी
कोई बेरियां चले। चल चुकी है आपकी फिल्म मीरा जी, चल चुकी है, खुदा का नाम ले। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, मैं आज एक लम्हा फिक्रिया पे बात करना चाह रहा हूं, और इस लम्हा फिक्रिया से ज्यादा लम्हा फिक्रिया ये है कि इस लम्हा फिक्रिया को लोगों की अक्सरियत लम्हा फिक्रिया ही नहीं समझती। हाय 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 हाय, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम मुझे दानिश्वर नहीं समझती। मैं ही तो समझता हूँ। और मेरी बात, एक दिन ये एहसास होगा कि यार ये वाकई में गलत करता हूं। अजीजी, जब हम सड़कों में आएंगे फिर पता चलेगा इनको। जब टायर जलाएंगे, बसों को आग लगाएंगे, फिर पता चलेगा। टायर जलाने का नहीं उन्होंने कहा। अच्छा मेरी बात सुनो यार, पहले पूछ तो लो कि लम्हा फिक्रिया है क्या? है क्या? लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान में हद से बढ़ा हुआ प्रॉपर्टी का क्रेज, ये जो प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, हर शख्स अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ के अपना वक्त, अपना सरमाया प्रॉपर्टी में लगाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। ये किसी मुल्क की मईशत के लिए किस कदर नुकसानदेह अमल है, किस कदर नुकसानदेह रुझान है, हमें इसका कतई तौर पे अंदाजा नहीं। नहीं तो काम ऐसा है ना कि इसमें पैसा बहुत है और ज्यादातर इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। असल में देखो, ये जो प्रॉफिट होता है उससे मईशत का पहिया चलने में कितनी मदद मिलती है ये कोई नहीं जानता। एक बंदा है, वो प्रॉपर्टी लेके बैठ जाता है और आराम से सारी अपने चलते हुए कारोबार में से पैसा निकालता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा होता है। उस कारोबार से पैसा निकालता है और एक मिट्टी का टुकड़ा खरीद के बैठ जाता है और फिर उसके महंगे होने का इंतजार करता रहता है। ये किसी भी जिंदा कौम के लिए, चलती हुई उभरती हुई मईशत के लिए ये जहर कातिल है, ये रुझान जो है। मगर पाजनैद पूरी दुनिया के ऊपर जो बड़े बड़े डॉन हुए हैं, जो सरमायादार हुए हैं मुल्कों के, उन्होंने काम वैसे प्रॉपर्टी का ही किया। यार प्रॉपर्टी का काम अपना असल कारोबार छोड़ के नहीं किया, अपने असल कारोबार से पैसे कमा के प्रॉपर्टी जरूर खरीदी है। मैं इस रुझान की बात कर रहा हूं कि अपना असल कारोबार छोड़ छाड़ के वो प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गए, इसलिए वो ये समझते हैं कि इस काम में यानी कारोबार में इतनी आमदन नहीं है, इसका नुकसान क्या हो रहा है। सबसे बड़ी आप इस मसले की संगीनी को समझ लो कि इस वक्त हर साल 7 खरब रुपए, एक ऑफिशियल फिगर, हालांकि जो असल फिगर है वो 15 खरब रुपए ये प्रॉपर्टी यानी मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, जो किसी काम नहीं आते। देखो ना, उससे ना तो किसी को रोजगार मिलता है, सिवाय 2-4 प्रॉपर्टी डीलर्स और एक आध जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसको जरूर फायदा होता है। फिर इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर मामलात में तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप सिर्फ फाइल्स का अदल बदल करते हैं, यानी एक तरह से सट्टा खेल रहे होते हैं। इससे ना तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, हो क्या रहा है। अब ये सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिम्मेदारान का यह कहना है कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इसकी सालाना ग्रोथ जो थी, शरह तरक्की जो थी, वो 6% थी, जो अब कम होके 3% रह गई है। अब ये देखो कि जब स्मॉल इंडस्ट्री जो है तबाही का शिकार हो जाएगी, तो वहां से जो मिलने वाली लेबर है, जो बड़ी इंडस्ट्री में ट्रेड होके जाती थी, बड़ी इंडस्ट्रीज को लेबर नहीं मिलेगी, फिर पैसा स्टक हो जाएगा, वो अनप्रोडक्टिव इस्तेमाल में आएगा, हर बंदा कारोबार छोड़ के प्रॉपर्टी खरीदने पे लग जाएगा। इसमें पाजनैद जो एक और बड़ा नुकसान हो रहा है, बल्कि बड़ा खतरनाक जो नुकसान हो रहा है, वो ये है कि ज़राई जमीन जो होती है हमारी, वो बड़ी कीमती है। जी सर, हम मशहूर हैं ज़राअत के हवाले से, जो कि अब नहीं रहे बदकिस्मती से। वो इसी वजह से नहीं रहे कि ज़राई जमीन कितनी कितनी खरीद के उसको तगड़े लोगों ने उसको सोसाइटियों में डाल के टाउन बना के तो चमाचम बेचने शुरू कर दिए हुए हैं। इसलिए वो बिक भी रहे हैं और तड़ातड़ बन भी रहे हैं टाउन सोसाइटियां, कि इसका क्रेज वाकई बहुत बढ़ गया। ये सोच ही बहुत मनफी है कि आप कोई कारोबार करने की बजाय एक आसान काम समझते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस को, सारा पैसा निकाल के आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये एक सोच ही मनफी सोच है। अब ये देखो ना कि बाज दफा तो लोग इसलिए कारोबार में, जो पाकिस्तान में मुश्किलात हैं कारोबार शुरू करने में भी, कि तरह तरह के मेरे ख्याल 450 महकमों से इजाजत लेनी पड़ती है, फिर तरह तरह के आपको रिश्वत देनी पड़ती है, फिर आपको एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग आसान समझते हैं कि सेविंग करनी है तो आप प्रॉपर्टी का कोई टुकड़ा लेके
लेके रख दो, लेकिन वो प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा नहीं रहता। फिर आप उसमें तरक्की चाहते हो, देखना चाहते हो, फिर आप उसको देखते रहते हो कि आज क्या रेट हो गया, कल क्या रेट हो गया। ये कोई कारोबार नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट। हाँ, दुनिया में जहां पर भी ये इकोनॉमी में, ये रियल एस्टेट में बूम आता है, अगर तो वो किसी वजह से आए, किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आए कि किसी शहर में, किसी मुल्क में तरक्की हो रही है बहुत तेजी के साथ दीगर शोबों में, और फिर रियल एस्टेट ऊपर आ रहा है, तो फिर वो हकीकी तरक्की होती है। लेकिन अगर वो इसी तरह की फाइल्स का तबादला है, तो वो फिर मैंने पहले जैसा अर्ज किया कि वो मईशत के लिए जहर कातिल है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? देखो, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, वो जितना पैसा यहां पे भेजते हैं पाकिस्तान में, उसका 62% तो इस्तेमाल हो जाता है, यानी वो अपने घरों में भेजते हैं, 62% तो इस्तेमाल हो गया। 21% जो ज़र मुबादला बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां पे भेजते हैं, वो प्लॉटों की नजर हो जाता है। 12% सिर्फ ज़र मुबादला है जो दीगर कामों में इस्तेमाल होता है। 21% जो है वो बाउंड होकर रह जाता है, और ये अगर 7 खरब भी लगाएं तो हमारी GDP का 4% हिस्सा बनता है। तो सर मैं फिर अपना 8 कनाल का प्लाट बेच दूं? कहां है वो 8 कनाल का प्लाट? सोचा तो मैंने रायविंड रोड पे आके लेना वहां। तो बेचना कौन सा कह रहे हो? जो सोचा हुआ है। फाइलों की खरीदो फरोख्त भी इसी तरह ही होती है, जो सोची हुई है जमीन एग्जिस्ट नहीं करती, फाइलें एग्जिस्ट करती है। नहीं, वैसे यार मेरी बात सुनो, ये जो सोसाइटियां बन रही हैं, चलो ज़राअत का तो नुकसान हो रहा है, मगर ये जब कंस्ट्रक्शन होती है या सड़कें वड़कें ये वो बनती हैं, जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है, उस पे भी मजदूर शजदूर लोग जो है वो काम तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो खपत होती है वहां पे लेबर की। अगर मकानात बनते हैं तो फिर वाकई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, लेकिन हमारे यहाँ आदादो शुमार इंतहाई अफसोसनाक है इस हवाले से। वो ये है कि तकरीबन 70% जो प्लॉट खरीदे जाते हैं, वो प्लॉट को प्लॉट रखने की ही नीयत से खरीदे जाते हैं, जबकि 25 से 30% जो प्लॉट है वो मकान बनाने की नीयत से खरीदे जाते हैं। और नतीजा जिसका ये है कि आज वतन अजीज में 700 अरब के खाली प्लॉट पड़े हुए हैं। अब वाकई बड़े बड़े महंगे प्लाट खाली पड़े हुए हैं, और अगर आप किसी से पूछे ना कि भाई जी ये पार्किंग है या किसी का प्लाट है, तो कहते हैं भाई जी ये ख्वाजा साहब का प्लाट है, और ख्वाजा साहब आजकल बेल्जियम में हो। वो तो बेल्जियम ਦੇ ਮੌਜ ਤੇ ਗੋਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। क्यों जी? ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। खाली प्लॉट से गोगा मोहब्बत करता है और खाली प्लेट से नफरत करता है। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं, लेकिन हमारे नोमी की तवज्जो पढ़ाई की बजाय कुछ खास चीजों के हसूल पर मरकूज है। वो चीजें क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी नोमी जी, ऐसी कौन सी खास चीज मांग ली है मैंने जुनैद जंग को? गेस्ट पेपर के लिए पागल हुए जा रहे हो यार तुम। पागल नहीं हुआ जा रहा, दूसरे फ्रेंड्स मेरे भी उसी पे तैयारी कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा है कि आप मार्केट से जाके देखें कहीं से मिल जाएगा। कहते हैं नहीं, गलत काम है, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है गैस पेपर पे। मैंने कहा गवर्नमेंट का तो अगर दिमाग चल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें मेहनत करनी है, पढ़ना है तुम्हें, गैस पेपर में नहीं ला के दूंगा तुम्हें। मुझे बात तो पूरी कर लेने दे। जब मैं बाद में बोलता हूँ तो कहते हैं तुम्हें मैनर्स नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि मेरे फ्रेंड्स लेके आए हैं, उनके पापा ने उनको ला दिया है गैस पेपर। तो मैंने कहा मैं उनसे पूछ देता हूँ वो कहां से लेके आए हैं, तो आप भी मुझे ला दे। तो कहते हैं नहीं, पूरी बुक पढ़ के तैयारी करो अगर कर सकते। अब इतनी दफा पूरी बुक पे तैयारी किया, नहीं पास हुआ, तो फिर इस दफा भी फेल। यार अगर तुम्हारे अब्बू गैस पेपर को गलत समझते हैं तो ठीक समझते हैं, जो दूसरे लड़के हैं वो उनके पापा गलत हैं। हाँ बिल्कुल गलत है, तुम्हारे अब्बू एक बासूल बाप है। तो जब बिजली की तार पे कुंडा डालते हैं उस वक्त नहीं 2 नंबर बिजली चोरी करते हैं। और क्या, ये भी तो एक मसला है ना कि माँ बाप अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अमली नमूना तो पेश करते नहीं है। बच्चे क्या मैंने नहीं कोई गलत बात, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अगर चले गैस पेपर ना ला के दे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे
उस जो हमारा एग्जामिनेशन हॉल का सुप्रिटेंडेंट है, उनका उन्होंने मुझे एड्रेस भी दिया, फोन नंबर भी दिया। मैंने कहा आप उनसे बात कर लें, थोड़ी वो मेरी सपोर्ट कर देंगे अगर हॉल के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। कौन सी सपोर्ट कर देंगे, जरा बताओ ना, क्या सपोर्ट चाहते हो तुम सुपरिटेंडेंट से? अगर मुश्किल पेपर आ गया तो हाँ, तो क्या वो क्या करेगा, सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? तो वो अगर मेरे पास में नहीं होगा तो 1-2 सवाल अगर वो करा देंगे तो क्या? ये 2 नंबर काम है नोमी, और मैं 2 नंबर काम करके दूसरे बच्चों का हक नहीं छीनना चाहता। तो जो कंप्रेसर लगा के दूसरे लोगों की गैस खींच रहे होते हैं, कितनी दफा आके गैस वाले कहते हैं कि ये 2 नंबर काम है, ना ये करे। तो फिर आप कहते हैं कि अगर फिर ना लगाए कंप्रेसर तो फिर हंडिया कहां से पकेगी, चूल्हा कहां से जलेगा? तो अगर चूल्हा जलाने के लिए अगर आप 2 नंबर काम कर सकते हैं तो बच्चा पास कराने के लिए 2 नंबर काम। यार ये कोई जस्टिफिकेशन है? अगर तुम्हारे अब्बू कोई गलत काम करते हैं तो ये इस बात की जस्टिफिकेशन है कि तुम्हें भी गलत काम करवाए? सब 2 नंबर कामों के खिलाफ बच्चों के लिए बोलना होता है। बच्चा फेल हो जाए जितनी दफा मर्जी, उसके लिए नहीं कुछ करना और खुद करना है जो मर्जी। यानी गैस खींचने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और गैस पेपर इस्तेमाल करने पे ऑब्जेक्शन है। वाजिब। ना नोमी, तुम ना रोना, जितना जितना बड़ा तुमने आंसू गिराना, यहाँ पे वेपर फेरना पड़ेगा। वैसे भी रोने वाला मुंह ही नहीं, फैसले करने वाला मुंह है। नहीं, रो तो नहीं रहा। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप लोग भी मेरे पापा के साथ मिलके ना तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिर्फ जलील कर लिया जाए, बच्चों की बात ना सुनी जाए। अगर बच्चा एक आपको मालूम है कि इतनी देर से बेचारा फेल हो रहा है, उससे नहीं पास हुआ जा रहा, मैंने कहा कि सिर्फ आप वो जो सुप्रीडेंट साहब हैं उनसे एक दफा बात कर लें। ये मामूली बात है, ये करप्शन है, बदउनवानी है। खुदा का नाम लो, सुपरिटेंडेंट तुम्हें पर्चा करवाएगा, तुम्हें नकल करवाएगा, ये मामूली बात है तुम्हारे लिए। नहीं तो फिर पास होने के लिए क्या किया? मेहनत करो। हाँ ते मेहनत कर, जिस तरह खान पीन ते मेहनत करना है। जिड्डा तू बचे तेरी ते बंटी भी पठाना दे नान जिड्डी होनी। छिपकली के अंडे, मेरे बच्चे का मजाक उड़ा रहे हो? देखें जी, मैं ना कोई 2 नंबरी करना चाहता हूँ ना कोई गलत काम। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने जैसे मुझे बताया, मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे फराज के अब्बू ने वो सुप्रीडेंट को एक पेपर के लिए 10,000 रुपया दिया है, तो मेरे भी सिर्फ इंग्लिश के पेपर का मसला है, वो कई सालों से अड़ा हुआ है। अगर पापा उसको 10,000 रुपया दे देंगे, सुप्रीडेंट का नंबर भी है मेरे पास, तो इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। तो इसमें क्या है? तो करेगा क्या सुपरिटेंडेंट? वो थोड़ी हेल्प कर देंगे ना, फिर मेरे पास मार्क्स आ जाएंगे। कैसे हेल्प कर देगा? नहीं, वो नहीं हेल्प करते। वो सिर्फ ये है कि आप किसी फ्रेंड से अगर या कोई बुक से लिख लें तो वो मुंह पर करके चले जाती है, वो देखते नहीं है सिर्फ। ये तुम्हारे नजदीक गलत बात नहीं है? नहीं, सिर्फ एक पेपर, बाकी पेपर तो मैं पढ़ के दे रहा हूँ। नोमी, मैं ऐसे कामों के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। खाकवानी साहब बच्चों को आराम से समझाते हैं, ऐसे बच्चों के जहन बाउंड हो जाते हैं। हाँ तो और क्या, ये आपका जहन बाउंड हुआ है? नहीं, आप बच्चों को गलत तौर पे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जुनैद अंकल, यही वो अंकल है ना जो कहते थे कि मैं आपको गैस पेपर ला दूंगा। ओ, तो ये है वो मसूफ जो 2 नंबर काम करके लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। नहीं, ये 2 नंबर काम नहीं करते हैं। ये तो इम्तिहानी मरकज में लीमू डाल के लोबिया बेचते हैं। ये कहते हैं कि मैं लोबिये से तो कुछ भी नहीं कमाता, मैं तो बच्चों की खिदमत के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ होता हूँ। गैस पेपर भी दे देते हैं और सुप्रीडेंट से बात भी करवा देते हैं। अच्छा जी, आप गैस पेपर कैसे बना लेते हैं? खुद आप पढ़े लिखे नहीं हैं, शक्ल से आप डाकू लगते हैं, तो किस तरह ये काम करते हैं? नहीं, डाकू नहीं है, मैंने आपको बताया ना, लोबिया बेचते हैं प्याज डाल के। पढ़े लिखे तो नहीं है ना? नहीं, पढ़े लिखे भी हैं, इन्होंने मुझे बाहर थैंक यू बोला था। कहाँ से लेते हैं जी आप गैस पेपर? सर जी ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और कुछ टीचर भी शामिल होंगे। ये देखे जी जी अंकल, ये सारे बेचारे बच्चों की खिदमत के लिए ही सारे मिलके कर रहे होते हैं, और मेरे अकेले बाप नहीं मेरे लिए कुछ भी कर। बेटा खिदमत मुफ्त में होती है। खुद सोचो
کہ کہاں آپ نے پوری کتاب پڑھنی ہے, یاد کرنی ہے, اور کہاں آپ نے صرف 4 سوال یاد کرنے ہیں, بلکہ ان کی بھی نقل تیار کرنی ہے. یہ چھوٹی بات کل پڑھا تو ہے سارا سال, بس اب تو ایگزام دینے نا بس. تو اس کے لیے تمہیں صرف 4 سوال چاہیے. تو اس کے لیے یہ اگر بتا دیں گے تو پڑھا تو وہی ہے, تو 4 سوال جو ہیں وہ پھر میں یاد جلدی کر لوں گا نا. ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾਲ ਗਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ. गन मैन किस लिए लगने, अभी पेपर दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा तो सियासतदान को कह के तो अच्छी भली जॉब पे लग सकता हूँ. ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ प्लान देखो. ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 6 ਬੈਂਚ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ. ओ भाई मुझे तो बताओ, मैं जाऊं फिर? मेरा टाइम जाया क्यों कर रहे हो? मेरा तो सीजन है. सीजन है, और कुछ शर्म करो. सीजन इस तरह कह रहे हो जैसे सोयाबीन बेचने आए हुए. और बच्चों को तुम गलत रास्ते पे लगा रहे हो, और सबसे बड़ा जुर्म ये करते हैं लोग कि ये गेस्ट पेपर के नाम पे एग्जैक्टली पर्चा आउट करवा देते हैं. उसमें एक आध सवाल और डाल देते हैं ताकि पकड़े ना जा सके, लेकिन हूबहू ये पर्चा आउट करवाते हैं. वाकई? हाँ जी. फिर तो जरूर ले लेना चाहिए. तो मैं तो तुम्हारा बाप से मालेगा ना, इसको मैं अरेस्ट करवाता हूँ. खुदा के लिए अब क्या कर रहे हैं? मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा. क्या नुकसान हो जाएगा? मेरा घर खाना पका पिया वो खराब हो जाएगा. यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. अच्छा जी, बात तहजीबियों में जो पहली बात आज मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहस एक तो हम बहुत ही करना शुरू हो गए हैं जी सर. और बल्कि हमारा महबूब मशगला पाकिस्तानियों का अब बहस बन चुका है. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ. उसमें मेरा ख्याल है चलो बहस तो कर दी जाओ, उन बंदा की कह सकता है किसी. बदतहजीबी की हद तक वो बहस उस वक्त नजर आनी शुरू हो जाती है जब आप बिल्कुल गैर मुतलका आदमी के साथ बहस करनी चाह रहे होते हैं. ਸਹੀ. यानी कि अगर आप एक धोबी के साथ ये बहस करनी शुरू कर दें कि भाई जी पला जेड़ा है ना वो 10 किलो वाली देग च 8 किलो गोश्त ही पैंदा है, वो तो धोबी है, उसको हर दूसरी इस पे बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है. वो जो कुर्ते पे पड़ने वाला बिरयानी का पुलाव का दाग है उसको देख के सब कुछ बताता है. इसको कहते हैं, जो मैं कर रहा हूँ इसको कहते हैं कज बहसी. ये वाकई कोई ताल्लुक नहीं होता किसी अनपढ़ बंदे से. पढ़ा लिखा बंदा बहस तड़ा तड़ करता जा रहा है और फिर चलो वो तो अनपढ़ है, वो तो बेचारा चाह रहा है बहस करके पढ़ा लिखा अपने आप को साबित करना. यार तू पढ़िया लिखे तू ही मुड़ जा. तुम्हें तो इतनी सेंस होनी चाहिए कि इसको कख पता नहीं जो मैं बात कर रहा हूं. ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बहस होती है. मेरा हमसाया मेरे ड्राइवर से बहस कर रहा था कि तुम्हें क्या पता है कि गैलेक्सी की मिस्टीरियसनेस क्या होती है. ड्राइवर को पूछा. ड्राइवर को पता है, ड्राइवर को गैलेक्सी S7 के अलावा क्या गैलेक्सी का पता हो सकता है? जी उसको गैलेक्सी 7 का भी नहीं पता. उसको तो बेचारे को ये पता है कि मेरी वड्डी फूफी गैलेक्सी 7 में दी पिछली गली चली. उसको क्या पता गैलेक्सी. इस तरह की बहस तो हम जैसे प्रोफेसरों के साथ ही बनती है. इस प्रोफेसर ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਦਹੀਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 5 किलो दही होवे तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਲਾਣੀ. 1.5 चम्मच. तो सर इसका मतलब ये हुआ कि पढ़े लिखे आदमी को अनपढ़ से बहस नहीं करनी चाहिए. पहले आज के बाद मैं आपसे नहीं करूंगा बहस. अच्छा शुक्र है तुम्हें एहसास हो गया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ. बहस शुरू हो गई. तुम दोनों ही ना दिल पे लगाओ, अपनी अपनी फोटोआं खिंचवा के देखो तो के कुछ ही हो. अच्छा एक और बड़ी अजीब सी बात तहजीबी मैं कहना चाहता हूं कि आप घर में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए. किसी के दफ्तर में आप बगैर बतलाए आ जाएं और दफ्तर के गेट से आपको फोन आए कि भाई जी आपको सदीक साहब मिलने आया तलवंडी मूसे से. भाई सदीक साहब को किसने कहा था कि तलवंडी मूसे से आप बस पे चढ़ के आ जाए. मैं आज अगर को और दफ्तर में काम कर रहा हूं और अगर मैं छोड़ के आपको मिलना बैठ जाऊं तो मेरा बॉस आ जाए और मैनू भी कहे कि भाई जी जानते हैं तुसी भी तलवंडी मूसे वाली बस च बैठ जाओ तो फिर तू चंगा रहेगा. तुम यार तकलीफ करके फोन करके पूछ लो कि आइए जी साहब आप ऑफिस में आज बिजी तो नहीं. तो ये ना तो अक्सर आगे से यही कहना होता है कि नहीं ऑल द टाइम अलफ वेला. यार को हया करो, बहुत से वेला होता है, अलफ वेला कहां से आ यार ना नंगा अलफ से होता ना वेला अलफ से होता. वैसे तो
अच्छा, एक और आपको बहुत ही अजीब सी बात है, ये भी आप सुनाने लगा हूँ। आप हैरान होंगे कि अजीजी की कितनी गहरी नजर है। अजीजी अगर नजर ज्यादा गहरी हो गई तो बीच में मछलियां छोड़ दो। देख लो, मैं अल्लाह ये तुम्हें नहीं कह सकता कि अगर तुम्हारा मुंह ज्यादा पह गया तो कीनिया शिफ्ट हो जाओ। मैं गुजारा कर रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। एक मिनट ठहर जाओ, बात सुना। बात तहजीबियां बताओ। बात तहजीबी यही है जो इसने की है। एक दानिश्वर पता नहीं क्या कहने लगा, उसने पहले और एक किस तरह इल्म इकट्ठा किया तो बीच में अपनी जुगत मार के उसका सारा इल्म खिला दिया। गहरी नजर। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप जब किसी को उसके बच्चों के साथ मिले, किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को, उसके साथ बच्चे हों, तो थोड़ा सा ये ख्याल रखें कि उसके बच्चों के सामने आप मजाक इस तरह का करते हुए कि उसकी इंसल्ट हो और उसके बच्चे बेचारे अपने बाप की इंसल्ट फील करें। इससे थोड़ा सा इज्तनाब बरतना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इज्तनाब बरतना चाहिए का क्या मतलब है? परहेज करो भाई जी। अगर कोई आपके दोस्त के साथ फैमिली है तो थोड़ा सा अपना शोखापन जो है उसको हल्का सा टैट कर ले। जिस तरह सियाने कहते हैं ना कि शायद शीशी टैट करके बात करो वरना खराब हो जाता। इसी तरह अगर साथ बच्चे हैं तो आपकी मेहरबानी है थैला साहब कुछ हया किया। और यार थैले के अपने साथ ये होता है, थैला कहता मैं अपने बच्चों के साथ जा रहा होता तो गौरी हमेशा कहता हूँ पाटे थैले। थैला भी नहीं कहता, पाठा थैला कहता है। इट इज वेरी टू मच। सॉरी करो उससे। सॉरी थैले, अब मैं पाटा हुआ थैला नहीं कहूंगा, फटा हुआ थैला कहूंगा। यानी इसके नजदीक उर्दू ही सिर्फ तहजीब है और पंजाबी बोलना अल्लाह माफी दे बात है। अब भाई जी आप पंजाबी में भी किसी की इज्जत कर सकते हैं। जरा इस तरह का अपने मजाज को बनाएं कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते अपने मुआशरे के जो दूसरे अनासर हैं, जो दूसरे मुआशरे के मेंबर्स होते हैं, उनका भी ख्याल करना चाहिए। पूरा नाम लेके बुलाएं तो फैल अंसारी कहें, थैला जरूर कहना आप। बिल्कुल। और ये जो अंसारी कह रहे हैं ये भी दिल से नहीं कह रहे, ये अपनी तरफ से उसका तमस्खर ही अच्छा सर, एक बात तहजीबी का जिक्र मैं भी करना चाहूंगी। अक्सर जब हम एटीएम से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो उसकी जो रसीद होती है वहां पर डस्टबिन पड़ा होने के बावजूद वहीं पर फेंक देते हैं और ढेर लगा होता है वहां पर। और दूसरी बात ये है कि उसको फाड़ के फेंकना चाहिए वरना डाकू भाईजान उससे आपका अकाउंट नंबर देख सकते और उसको डस्टबिन में मरोड़ी दे के फेंके। ऐसे करके ना उसको मरोड़ी दे लें ठीक है और फिर फेंके। पहले पाड़ियों से फिर उसको अलग-अलग ऐसे खिलार के फेंक दे ताकि आपका अकाउंट नंबर ना भूले। साथ कह रहे हो मरोड़ी दे के, साथ कह रहे हो खिलार के फेंके। एक बात करो ना, एक का नंबर दूसरे का। अद्दा कर यार ये लड़का इसको असल में ना ईमान से मैंने ये महसूस किया कि इसको सारी जिंदगी इतना पढ़ा लिखा दोस्त नहीं मिला। एक इसका दोस्त जाहिद वो वेल्डर लेके सऊदी अरब जाता है, एक किसके दोस्त का नाम छुरा है। क्या मतलब यार, तुम जानते हो छोरे को? ये अभी वो वजीर आजम साहब के साथ गया हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कवर करने के लिए डिवोर्स। यार मैं मोहतरम असलम खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे महल्ले का जो मीदा छुरा ग्रिलों वाला है उसकी बात कर रहा। गुजरा वाला होने की वजह से उसको कवर कर रहे हैं। क्या तुमने असलम चुराई था? जाने दो यार, जीनियस आदमी है इस तरह। ये था आज का इस पे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।